Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today we are going to meditate Exodus 14:14. आज के दिन निर्गमन की किताब 14 अध्याय के 14 वचन से हम अध्ययन The करेंगे। Lord shall fight for you and you shall hold your peace. यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहे। We all know the Lord has rescued Israel from their slavery in Egypt. हम सब जानते हैं परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मिस्र के गुलामी से छुड़ाया They lived as slaves for a long period of time. और ज्यादा समय तक वो लोग मिस्र की गुलामी में थे। But God brought them out of Egypt with much wealth. लेकिन परमेश्वर ने बड़ी संपत्ति से उनको मिस्र से बाहर लेकर आया। God had afflicted the Egyptians with all the plagues as we read in the scriptures. जैसे हम वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मिस्र के लोगों पर और बहुत ही उस ताड़ना उनको दिया था। So finally, after the death of the firstborn, और अंत में जो पहलौटा का मृत्यु होने के बाद Pharaoh, in an emotional decision, ordered these Israelites to leave Egypt. और फिरौन ने इस्राएलियों से कहा कि आप मिस्र को छोड़कर जाइए। There are two schools of thought here. यहाँ पर हम दो विचार रहते हैं। From the Egyptians' point of view, हम मिस्र के नजर से देखें, and they are telling we have driven out the Israelites. उन्होंने क्या बोलता है कि हमने इस्राएलियों को भगा दिया है। Whereas from the Israelites' point of view, लेकिन जब हम इस्राएलियों के नजर से देखें, what they are telling, उन लोग क्या बोलते हैं? we got freedom. हमको स्वतंत्रता मिली है। So the struggle for liberty was fruitful. तो यहाँ पर जो स्वतंत्रता छुटकारा के लिए जो लड़ाई कर रहे थे वो सफलता प्राप्त की। And later Pharaoh wanted to eradicate the Israelite race. अभी बाद में फिरौन ने इस्राएलियों के वंश को पूरी तरह से नाश करना चाहता था And then he ordered the army to pursue them. और उसकी सेना को आज्ञा दी कि उनके पीछा हो जाओ। Why? क्यों? Because the Egyptian army and the authorities, they regretted about what they had done in asking the Israelites to leave. क्योंकि मिस्र के सेना लोग ने और उनके अधिकारी लोग इस्राएलियों को जाने दिया, इसलिए वो लोग पश्चाताप कर रहे हैं अभी। Because all the slaves are going from tomorrow onwards, who will be the slaves in our country? क्योंकि सारे गुलाम यहाँ देश को छोड़कर जा रहे, तो कल से हमारे देश में कौन हमारी गुलामी करेगा? That's why they chased them and they wanted to overtake the Israelites. इसलिए इस्राएलियों को पीछा करते थे और इस्राएलियों पर वो कब्जा पाना चाहते थे। And God led the Israelites to basically a dead end. तो अभी परमेश्वर ने इस्राएलियों को ऐसे स्थिति पर पहुंचाया कि वहां से और आगे नहीं जा सकते, Because they had a massive body of water before them, the Red Sea. क्योंकि उनके आगे और इतना ज्यादा पानी जो समुद्र, लाल समुद्र था, And behind them, the powerful Egyptian army. पीछे से हम देखते हैं शक्तिमान जो मिस्र की सेना आ रही थी। So they were panic stricken. तो यहाँ पर वो लोग डरे हुए हो गए थे They were agitated so much in their minds. और उनके मन में भी वो लोग बहुत डर रहे Oh, थे their hearts were filled with fear. और उनके हृदय में हृदय डर से भर So गया। instead of holding fast to the word of God and remembering God's promises to take them safely into the promised land, तो परमेश्वर ने जिस प्रकार से उनको वायदा किया था कि मैं वाचा दिया जो देश में ले जाता हूँ, इस वायदे पर विश्वास करने के बदले में they have not put their faith in the promises given to Abraham. और अब्राहम को जो परमेश्वर ने वायदा किया उस पर इन्होंने विश्वास नहीं So किया। they are not looking at the promises, but they are looking at the problems that were surrounding them. तो अभी वो विश्वास से नहीं, लेकिन उनके पास जो समस्या थी उस पर अपनी दृष्टि को लगाया। So the surging waters of the Red Sea stood ahead of them, अब आगे हम देखते हैं तो लाल समुद्र का पानी दिखता है and mountains towered all around them, और उनके आसपास में तो ऊंची ऊंची पर्वत पहाड़े थी and also the Pharaoh's army were advancing menacingly towards them. पीछे से फिरौन की सेना उनका पीछा कर रहा So they cried out in fear and unbelief. और वो डर के मारे अविश्वास होकर परमेश्वर को पुकारने लगे, Because for their confidence in God's promised rescue had faltered, they could not believe. क्योंकि परमेश्वर जो वायदा किया था उस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया था। The Israelites were in a seemingly impossible situation. अब इस्राएली लोग ऐसी स्थिति पर पहुंचे, बिल्कुल ये तो असंभव की बात है। But do you know one thing? लेकिन आप जानते हैं एक बात को, It was the situation brought on by the Lord himself. देखिए ऐसी परिस्थिति को तो परमेश्वर खुद ही लेकर आया था। Why? क्यों ऐसा It किया? was God who had hardened Pharaoh's heart to pursue the fleeing slaves. क्योंकि ये जो भाग निकले थे जो गुलामी इस्राएली लोग, ऐसा करने में परमेश्वर खुद फिरौन के मन का हृदय को
उन्होंने घट कर दिया था। And why would God do such thing? परमेश्वर ने क्यों ऐसे कठिन काम को करते Why हैं? did God let them to such an obvious trap? क्यों परमेश्वर ने अपने लोगों को ऐसी परिस्थिति में पहुंचाया? The answers are so simple. इसका जवाब बिल्कुल सरल है। He wanted to demonstrate to them his mighty power. और परमेश्वर की जो प्रभावशाली शक्ति को इस्राएलियों को दिखाना He चाहता wanted to teach them invaluable lessons. और उनको बड़ी कीमती सबक को वो सिखाना चाहता था। What are those lessons? कैसे सबक है वो? If God be for us, who can be against us? यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में रहता है तो हमारा विरोध कौन होगा? Israelites must learn that when there is no way, God can make a way. इस्राएली लोग ये सीखना चाहिए था, जहां पर रास्ता नहीं दिखता है वहां परमेश्वर ने रास्ता दिखाएगा, बनाएगा। They should understand whenever things got dark, He will flash forth His light. ये बात को वो समझना था, जानना था कि जहां कहीं भी अंधेरा दिखाई देता है, छाया होता है, तो परमेश्वर अपनी रोशनी को वहां पर डालेगा। Not only that, और ना केवल God wanted to make it crystal clear to Egypt that He is the Lord, so that He got the glory over Pharaoh. परमेश्वर ने मिस्र को साफ साफ दिखाना चाहता था कि फिरौन के द्वारा यहोवा परमेश्वर महिमा पाए। Actually, the battle was not between the Egyptians and the Israelites, वास्तव में ये जो युद्ध लड़ाई है मिस्र और इस्राएली के बीच में नहीं है, but the battle was between the Egyptians and the Lord. लेकिन ये जो युद्ध है मिस्र और परमेश्वर के बीच दरमियान हो रहा था। So the lessons which we learn from this Exodus account, तो ये जो निर्गमन की घटना से जो सबक हम सीखते हैं, they can be powerful and life-changing lessons. ये जो सबक है हमारे जीवन को बदलने वाले शक्तिशाली सबक है। What are they? क्या चीज है, कौन सी बात When है? Christians trust God to fight their battles, जब मसीह लोग अपने युद्ध लड़ाई करने में परमेश्वर पर अपना भरोसा रखते हैं it enables them to be fearless and also hopeful. और बेडर निडर रहने में और आशाजनक रहने में सहायता करती है। There will be times when we can see absolutely no way around a problem. कभी कभी ऐसा समय आता है कि ये जो समस्या है और ये तो समस्या कोई परिष्कार नहीं होने वाला Just है। like the Israelites when they were cornered. जैसे इस्राएली लोग ऐसे मुकाम पर पहुंचे थे, It is quite probable that not even one Israelite would have imagined that the massive Red Sea was going to split into two. ऐसा होना एक इस्राएली भी ये नहीं जानता था और ये विश्वास नहीं करता था कि जो इतनी बड़ी मात्रा में जो पानी है, इतना बड़ा लाल समुद्र दो भाग हो जाएगा। And they never expected it that will become the way of escape. और कोई सोचा भी नहीं था कि वही उनके लिए बच निकलने के लिए वो रास्ता बनाएगा। More than that, और इससे बढ़कर they never dreamt that the same Red Sea which became a way of salvation for their lives would become a burial ground for the Egyptians. यही जो लाल समुद्र वो सब लोग इस्राएल लोग बचकर निकलने के लिए मुमकिन हो गया था, उनका सहायता किया था, और वही लाल समंदर उनके पीछे से जो शत्रु आ रहे थे उनके लिए, जो मिस्र की सेना के लिए कब्रिस्तान बन गया। When Christians believe God's word, जब मसीह लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास या भरोसा करेंगे, they learn that no battle is too formidable or not too big or monumental for God to handle. तो कितना बड़ा लड़ाई युद्ध हो, परमेश्वर से कोई अलग नहीं होता है। And so God, it is not impossible for God. परमेश्वर के लिए कोई असंभव की बात नहीं है। God can handle any type of battle. परमेश्वर किसी भी प्रकार के युद्ध को, लड़ाई को वो तो संभालेगा। So when we find ourselves at the dead end like the people of Israel in Exodus 14, तो जब हम इस्राएलियों के समान निर्गमन के 14 अध्याय में जैसे हम ऐसे मुकाम पर जहाँ पर हमारी कोई आशा ही नहीं है, ऐसी स्थिति पे पहुंचते हैं, we can be rest assured because God fights for us. लेकिन परमेश्वर हमारे पक्ष में वो युद्ध, वो लड़ाई करेगा। इन बात को लेकर हम शांति पा सकते What a हैं। word of comfort. देखने यहाँ पर कितनी आदत देने What वाली a word बात of है। confidence. देखने कितना हमको भरोसा दिलाने What a वाली word बात of victory Moses spelled out in the verse for our meditation today. है। और आज के दिन के अध्ययन के इस वचन में मूसा ने जो इतनी बड़ी जयवंत की बात को बताया, What he is telling? क्या बोलता है वो? The Lord shall fight for you and you shall hold your peace. यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। So God's people, when they obey God in faith, परमेश्वर के लोग जब विश्वास से उसकी आज्ञाकारी बनेंगे, they would find triumph at every turn. वो हर एक परिस्थिति पर वो लोग विजय प्राप्त करेंगे। Proverbs 21:31 says, और नित्य वचन
21 और 31 वचन में लिखा है, And victory rests with the Lord. एक विजय जो है परमेश्वर के साथ ही So मिलती है। God is in control. तो परमेश्वर है सबको नियंत्रण करने That वाला। does not mean Christians can avoid the battles. इसका मतलब ये नहीं कि मसीह लोग युद्ध लड़ाई से बचेंगे। To be frank, वास्तव में कहे, we are asked to put on the full armor in Ephesians 6:10-17. एफिसियों की पत्री 6 अध्याय 17 वचन 10 to से 17 10 वचन से लेकर 17 वचन तक लिखा है कि हम सब प्रकार के ढाल को इसको हम पहन कर रहना But चाहिए। our trust is in the Lord. लेकिन हमारा विश्वास, हमारा भरोसा तो परमेश्वर पर ही होना। Psalmist says in Psalm 20:7, भजनकार 20 और 7 वचन में लिखता है, some trust in chariots and some in horses. और कुछ लोग न अपने रथ पर भरोसा करते हैं और कुछ लोग अपने घोड़ों पर But भरोसा we trust करेंगे। in the name of the Lord our God. लेकिन परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। So therefore, dear brothers and sisters, इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, are you facing any conflict today? क्या आज के दिन आप कुछ युद्ध या लड़ाई की परिस्थितियों का सामना Being a कर रहे हैं? child of God, though you are upright, are you feeling that you are cornered? परमेश्वर के संतान होते हुए चाहे आप धर्मी जीवन जीते, लेकिन फिर भी ऐसी मुसीबत में पहुंचे हैं। Is there no लगता है way, no way of escape? आपको ऐसा लगता है कि हम यहाँ से बच निकल नहीं पाएंगे। Like Israel, we have to believe the word of God. और इस्राएलियों के समान हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। We are to have confidence on Lord's faithfulness. हाँ, परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर हम भरोसा रखना है। Yeah, we are to quietly trust in God of our salvation, तो हमारी उद्धार के लिए हम परमेश्वर पर विश्वास करना है, because He promised to fight for us. क्योंकि वो हमारे पक्ष में लड़ाई करने का जो वायदा He किया, promised to deliver us from all our enemies. हमारे सारे शत्रुओं से वो हमको छुड़ाएगा। Have faith in God and in His word. अब परमेश्वर पर, उसके वचन पर विश्वास कीजिए, Then you will be victor. तब आप विजय प्राप्त So not करेंगे। only here, in many parts of the scriptures, और न केवल यहाँ, लेकिन हम वचन में और कई भागों में देखते we हैं, see the same truth repeating. और यही सच्चाई बार बार हमको दिखता है। When David was facing Goliath, as we all know, it is not the sling and stone, but God fought the battle. जिस समय दाऊद ने गुलियात का सामना कर रहा था, उस समय में जो दाऊद के पास जो भी था उससे वो विजय प्राप्त नहीं, लेकिन परमेश्वर उसको विजय दिया था। So and in 1 Samuel 17:47 it is written, पहल- the battle is the Lord's. पहला शमूएल 17 और 40 वचन में लिखा है, 47 और 47 वचन में लिखा है, तो ये युद्ध, ये लड़ाई यहोवा की है। Again in the case of King Asa, when he was facing 10 lakh Ethiopian army, आसा राजा के जीवन में देखते हैं 10 लाख इथियोपिया की सेना जब आई थी उसके विरोध में, here we can see the same truth repeating. यही सच्चाई वहां पर भी हमको देखने के लिए When मिलता है। Jehoshaphat faced 3 armies, जिस समय यहोशापात में 3 प्रकार की सेनाएं उसके विरोध में आई the थी, Lord fought the battle. यहोवा उनके पक्ष में युद्ध किया। Even in the case of Hezekiah, हिजकिया के जीवन में when the Assyrian king came against him, आशीरियों का राजा उनके विरोध में आया था। very clearly it is written that one angel of the Lord killed 180,000 enemy soldiers. यहाँ पे साफ लिखा हुआ, एक यहोवा का, परमेश्वर का दूत और उसके शत्रु के सेनाओं में से 1,85,000 सेनाओं को मार गिराया। Even when Gideon was against the Midianites, जिस समय गिद्योन भी वो मिद्यानियों के विरोध में जा रहा he था, went only with 300 men. केवल 300 पुरुष को लेकर गया So था। we know God fought the battle. हम जानते हैं वहां पर परमेश्वर ही उसको लड़ाई किया Same था। is true in our lives also. हमारे जीवन में यही सच है। When we count the blessings, they are innumerable. जब हम इन आशीषों की गिनती करते हैं, वो तो अनगिनत आशीष है। And we are feeble, but He is able. हम कमजोर है, लेकिन वो हमारे सामर्थ्य He is our परमेश्वर, sun and shield. वही हमारा सूरज है वो, और हमारा ढाल है। And please believe that He will fight your battles also. और वो आपके युद्ध को भी, आपके लड़ाई, वही लड़ाई करेगा। आप जो कुछ भी युद्ध है, विश्वास कीजिए, But you have to obey His word. लेकिन उसके वचन का पालन करना है, आज्ञाकारी So may बनना Lord है। help you. तो परमेश्वर आपकी सहायता करे। Let us pray. प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेम स्वर्गीय पिता, what an encouraging promise to the children of God. और परमेश्वर के संतान के लिए क्या ही प्रोत्साहन देने वाला वचन है। Oh Lord, you will fight our battles. तो आप हमारे युद्ध को लड़ाई करेंगे, You never said that there won't be any battles for the children of God in this world. और इस संसार में परमेश्वर के लोगों के लिए कोई लड़ाई नहीं होगा, ऐसा तो आप नहीं बोला है। But when they are going through battles, the Lord will support them and
they will become victorious people. लेकिन जब वो लड़ाई में जाते हैं तो परमेश्वर उनके पक्ष में रहेगा और उनको विजय देगा। We have seen many examples और कई सारे उदाहरण को हमने देखा है how the Lord fought the battle when the Egyptian army is chasing the Israelites when they are coming out of Egypt. जिस समय मिस्र की सेना इस्राएलियों को जब वो मिस्र से बाहर निकल रहे थे उनका पीछा करते थे, ऐसी घटना को हमने देखा है। Secondly, we have seen during the days of Asa also. आसा के दिनों की घटना को भी हमने देखा है। 10 lakh Ethiopians came against Asa. 10 लाख इथियोपिया की सेना आसा के विरुद्ध में आए थे Thou has given them victory. और आप उनको विजयी दिए हैं। Jehoshaphat time also. यहोशापात के दिनों में भी And ऐसे हुआ। fourthly, when David was facing और Goliath, जिस समय दाऊद ने गोलियत का सामना कर Thou रहा has था given him victory. और उसको आपने विजय दिया है It is not the sling and stone, but you have given the victory. और उसके हाथ में जो पत्थर और ऐसा नहीं, लेकिन प्रभु आप उनको प्रभु आपने विजय दिया है। Even when Gideon was fighting the battle with Midianites with 300 men. और जिस समय गिदयोन ने 300 लोगों के साथ मिद्यानियों से लड़ाई करने गया Even in था, our own lives, हमारे जीवन में भी every day you are fighting the हर battle. दिन प्रभु आप हमारे युद्ध को लड़ाई करते हैं। Thank you for your love, O Lord. प्रभु आपके प्रेम के लिए धन्यवाद दें। In all our battles, be the very near unto us. हमारे सारे लड़ाइयों में प्रभु युद्ध में आप हमारे साथ रहिए। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।